Today I am going to start a topic straight line, which is a 10th topic of your NCERT. Now, straight line. The first we have, suppose we have a OXY plane. If a line L makes an angle theta with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. If a line L makes an angle theta with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Then theta is called inclination of line F, and clearly value of theta lie between 0 and 180. The theta lies from 0 to 180. If a line L makes an angle theta with positive x-axis in anti-clockwise direction, then this particular theta is called inclination of a line L, and theta lies from 0 to 180. Now the heading is slope of a line. स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं. So how to define slope of a line? If theta is an inclination of a line, if theta is an inclination of a line, then tan theta is called slope of a line, and it is denoted by f. It means the value of m is tan theta, and m is called slope of a line, theta is called inclination of a line. Now, this is a condition to find the slope of a line where theta is given. Clear? Now, slope of a line if the 2 points are given. Let's we have length P x1 y1 and Q x2 y2 be any 2 points on a non-vertical line. Making non-vertical line where inclination थीटा. अब देखिए बेटा यहां क्या पोजीशन है हमारे पास. ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक लाइन है बेटा जो एंगल थीटा बनाती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस इज द लाइन एल
there are 2 points we have P and Q. The points P we have x1, y1, and Q we have x2, y2. It means draw a perpendicular on x-axis PM and Q1. Similarly, from this point P, draw a perpendicular on Q. So this is we have, suppose P, Q, M and this is L, suppose we have. अब देखिए बेटे, आप जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास x1, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास x2. सिमिलरली ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये है y1, और ये डिस्टेंस हमारे पास है y2. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है बेटा. जो थीटा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल. अब देखिए बेटा, अगर हम यहां से tan थीटा निकालते हैं, आपने क्या निकाला, tan थीटा निकाला. tan थीटा क्या होता है बेटा, QL अपॉन PL. अब QL अपॉन PL, QL को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, QL माइनस LL. QL यानी पूरी टर्म में से LL को हमने माइनस कर दिया, मेरे पास रहेगा QL. सिमिलरली PL को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ML. अब QL क्या है हमारे पास, QL क्या है हमारे पास y2. LL हमारे पास है QM के इक्वल यानी कि y1 अपॉन MN बेटे देखो क्या है, OM माइनस OM यानी x2 माइनस x1. और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा को हम किससे डिनोट करते हैं, n से. तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. So this is the procedure to find out the slope of a line when 2 points P and Q are given on a line whose coordinates are x1, y1 and x2, y2 respectively. So if you have angle theta, then slope of a line n equal tan theta. If you have 2 points x1, y1 and x2, y2, then you have a slope y2 minus y1 upon x2 minus x2. Clear? Now, please take a screenshot of this. चलिए बेटे, अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस. Let we have two lines, non-vertical lines, L1 and L2, whose inclination is alpha 1, alpha 2, and angle between these two lines is theta, and this is an obtuse angle which is suppose phi. This is theta और this is phi. अब देखिए, अब हम क्या जानते हैं, हम एक बात जानते हैं, इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल्स, दैट इज क्लियरली as
अल्फा 1 प्लस थीटा, अल्फा 1 प्लस थीटा इज इक्वल अल्फा 2. So value of theta is alpha 2 minus alpha 1. अब क्या बन कर रहा है बेटा, दोनों तरफ आप tan थीटा ले लीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल tan alpha 2 minus alpha 1. Now tan A minus B, the formula of tan A minus B is tan alpha 2 minus tan alpha 1 upon 1 plus tan alpha 2 into tan alpha 1. और आप जानते हैं tan क्या होता है, tan स्लोप. देखो क्योंकि alpha 1 और alpha 2 इंक्लिनेशन है ऑफ लाइन L2 and L1, therefore the slope of line L1 is tan alpha 1 and slope of line L2 is tan alpha 2. So it means this becomes m1 m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. तो ये tan थीटा का जो रिजल्ट आया आपके पास वो क्या आया, m2 minus m1 upon m1 m2. सिमिलरली if अगर हम फाई निकालें तो फाई क्या है, फाई किसके ऊपर है बेटा, 180. देखो थीटा प्लस फाई लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो फाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 180 माइनस थीटा. टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, tan फाई इज इक्वल tan 180 minus theta, and tan 180 minus theta is equal minus tan theta. So value of tan phi is minus m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. अब ये बेटे एक रिजल्ट आया आपका tan थीटा m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, और एक रिजल्ट आया आपका बेटे नेगेटिव tan, that is tan phi. तो इससे हमें क्या पता चला, यहां से अगर हम दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर लें, तो अगर हम दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर लेते हैं और एक ही एंगल दे देते हैं that is tan थीटा, या अगर हम ये कहें कि if m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, तब tan थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्यूट एंगल होगा, और tan फाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा. इन दिस केस देन थीटा इज एक्यूट एंड फाई इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. और अगर m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 लेस देन 0 हो, अगर लेस देन 0 अगर लेस देन 0 हो जाए तभी tan थीटा कैसा हो जाएगा, देन थीटा इज देन एक्यूट एंड सॉरी थीटा इज ऑब्ट्यूज and phi is an acute. तो हमने इन दोनों रिजल्ट को बेटे कंबाइन कर दिया, तो हमने क्या कह दिया, इन दोनों रिजल्ट को tan थीटा कह दिया और मॉडुलस लगा दिया, m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हुआ जो आप दो लाइन के बीच के एंगल को फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे. अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो थीटा एक्यूट माना जाएगा, नेगेटिव आ जाता है तो थीटा ऑब्ट्यूज माना जाएगा. ये बेटे आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला है. अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे पहली कंडीशंस है इफ लाइन्स आर पैरेलल. देखो बेटे दो लाइन पैरेलल है, देन इंक्लिनेशन ऑफ
ए लाइन थीटा किसके इक्वल होगा बेटा 0 डिग्री के। अब थीटा 0 है मतलब tan थीटा 0 है। थीटा अगर 0 तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास 0 हो गई। जब tan थीटा 0 होगा, tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल 0। यानी कि यहां से हमें क्या मिल गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल 0। तो यहां से हमें हमारे पास क्या आ गया m2 इक्वल m1। देखो एक कंडीशन आ गई हमारे पास कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, if lines are perpendicular, if lines are perpendicular, अगर बेटे लाइंस perpendicular तब क्या होगा, तब देखो बेटे थीटा उस केस में क्या होने वाला है, थीटा उस केस में क्या होने वाला है 90 डिग्री। यहां कॉट ले लो, आप कॉट ले लिया आपने दोनों तरफ, कॉट थीटा इज इक्वल कॉट 90 यानी कि 0। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटे 0। जब कॉट थीटा 0 हो गया, अब tan का रेसिप्रोकल है कॉट, तो इस टर्म का रेसिप्रोकल चलिए हमारा सेकंड पॉइंट था जिस पर हम बात कर रहे थे कि दो लाइन पैरेलल होती हैं तब क्या होता है, और सेकंड पॉइंट है उसमें इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल 90 डिग्री मीन कॉट थीटा is equal cot 90, that is 0. So value of cot theta is 1 plus m1 m2 upon m2 minus m1 is equal 0. So we have 1 plus m1 m2 upon m2 minus m1 is equal 0. So result is m1 m2, this becomes 0 and value of m1 m2 is minus 1. It means when two lines are perpendicular, the product of their slope is equal to minus 1, and if lines are parallel then their slopes are equal. तो ये बेटे कंडीशंस हो गई हमारे पास दो लाइंस के पैरेलल या परपेंडिकुलर होने की। अब उसके बाद बेटे हमारे पास क्वेश्चंस है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है find the distance between two points P and Q when PQ is parallel to x axis। अब देखो बेटे PQ जो है parallel to y axis है। अब देखो इसको एक फिगर से समझिए आप। Then PQ is parallel to y axis। अब देखिए PQ जो है parallel to y axis, this is y axis, this is I axis, this is parallel to y axis, we have a line। Suppose there is a point P, x1, y1 and Q, x2, y2। अब देखिए अगर आप यहां से देखें तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो इट मींस x1 किसके इक्वल हो गया, x2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ जब PQ पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ क्या आ गया कि जो x1 है which is equal to x2, x2 equal x1, so we can say x2 minus x1 is equal 0। जब x2 minus x1 0 आ गया, आपने PQ फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो फॉर्मूला क्या होना बेटा आपके पास x2 minus x1 होल स्क्वायर y2 minus y1 होल स्क्वायर। अब x2 minus x1 तो आपने बेटे दिखा दिया है कि 0 के इक्वल है, तो ये क्वेश्चन की तरह रह गया y2
minus y1 whole square. So result of this particular portion is y2 minus y1. This is the result of the question. जो PQ है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी y2 minus y1. ऐसे ही बेटा इसका सेकंड पार्ट वो आप अपने आप करेंगे, आपके लिए है अगर PQ is parallel to x axis हो जाए तब क्या होगा, ये क्वेश्चन करिए आप। इसके बाद बात आती है बेटे द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a along y axis such that the midpoint of the base is the origin and find vertices of triangle। देखिए बेटे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, सॉरी ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस। द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a along y axis। अब देखिए बेटा ये एक ट्रायंगल बनाया, base along BC, origin is the midpoint of base। अब ये छोटा साइड है 2a, तो ये साइड भी आपकी हो गई a और ये साइड भी आपकी हो गई a, और जो पॉइंट a है वो कहां लाई कर रहा है x एक्सिस पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x0। b के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 0a और c के कोऑर्डिनेट आपके पास हो गए 0 माइनस a। तो अब हमारा सिर्फ एक पॉइंट निकालने रह गया पॉइंट ए, ठीक है। तो हमने मान लिया एज बेस BC लाई अलोंग y axis and O is midpoint of BC, therefore OB is equal OC is equal A। जो OB है और जो OC है वो क्या बन गए A। तो यहां से हमारे पास जो B के कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए 0a, और C के जो कोऑर्डिनेट मिले वो मिले 0 माइनस। अब हमने क्या मान लिया, लेट A x0 be any point on x axis। देखिए अब ये x है, ये a है, ये आपके पास a b जो है वो 2a है। तो अगर आप यहाँ पाइथागोरस लगा लें तो आप बड़े आराम से OA की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर OA किसके इक्वल हो गया बेटे, OA स्क्वायर, OA स्क्वायर किसके इक्वल हुआ बेटे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर। तो OA की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस √3। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स हो गए वो क्या हो गए, तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर। बेटे देखो क्या बने ABC के वर्टिसेस 0, A के पहले लिखो, A के बन गए प्लस माइनस √3a 0 और 0a एंड 0 माइनस a रिस्पेक्टिवली। ये बेटे इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास, ठीक है बेटा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेटे अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis in anti-clockwise। तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। देखिए बेटे पोजीशन क्या है इस बार, ये मेरे पास लाइन है ये, और ये एंगल बनाती है 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद y एक्सिस, और मुझे इस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना। अब देखिए बेटे ये लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है एंगल 30 डिग्री बना रही है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ये कितना है
90, तो आपने ये एंगल निकालना है बेटा, ये हमारा थीटा होता है, ये हमारा इंक्लिनेशन है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है। अगर ये एंगल निकल गया तो हमारे इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। मान लो ये हमारे पास हो गया ओरिजिन, ये ए, और ये हो गया हमारे पास बी। अब देखो ए और बी, एंगल ए, सॉरी ए ओ बी, ए बी ओ, ए बी ओ कितना हो गया 30 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब ये 30 डिग्री हो गया, अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, तो यहां से एंगल थीटा की वैल्यू क्या बनी 90 प्लस 30 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जब पॉइंट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो 90 प्लस 30 दैट इज 120। अब आप जानते हैं कि m क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री को आप जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 दैट इज माइनस cot 30, और माइनस cot 30 किसके इक्वल, माइनस रूट 3। तो इसका मतलब द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज इक्वल माइनस रूट 3। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्या गिवन है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन ऑफ स्लोप ऑफ द वन लाइन इज हाफ, then find the slope of the other line। अब हमने मान लिया let slope of another line is m। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला बेटा आप जानते हैं। अब यहां वैल्यू पुट करिए बेटा, जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा, tan π/4 इज इक्वल m माइनस हाफ 1 प्लस हाफ m। अब देखो tan π/4 होता है बेटा 1 के इक्वल, तो यानी कि यहां से वैल्यू क्या आ रहा है, एलसीएम भी ले ले और इसको आप सॉल्व करें तो ये बन के आता है 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। अब जब ये मोड घटाएंगे तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि एक वैल्यू हो गई 1 और दूसरी वैल्यू हो गई 2m माइनस 1, 2 प्लस m इज इक्वल माइनस 1। यहां से हम m की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्या आएगी 2m माइनस 1, 2 प्लस m, 2m माइनस 1 माइनस 2 माइनस m। तो रिजल्ट बनकर आया बेटा आपके पास m इज इक्वल 3, और यहां से बनकर आया 3m इज इक्वल माइनस 1, तो m इक्वल 3, m इक्वल माइनस 1। तो ये दो रिजल्ट हो सकते हैं बेटा, m की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो m 3 होगा या फिर m माइनस 1/3 होगा, जिससे कि जो दो लाइन के बीच का एंगल क्या बन जाए, π/4 बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें दिखाना है कि ये गिवन पॉइंट कोलिनियर है हमारे पास। अब देखिए पॉइंट्स कोलिनियर होने की हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है कि स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC होना चाहिए। स्लोप ऑफ AB जो है वो स्लोप ऑफ BC के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं। तो निकालने के लिए क्या है स्लोप ऑफ AB, अब स्लोप आप जानते हैं जब पॉइंट आपको गिवन होते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1, देखो मैंने फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से स्लोप ऑफ AB क्या निकल कर आया बेटे, 12 माइनस 8 5 माइनस 4 दैट इज 4। सिमिलरली स्लोप ऑफ BC निकाल लीजिए आप। अब स्लोप ऑफ BC क्या होगा, 28 माइनस 12 9
-5, यानी कि आपके पास क्या आ गया 16/4 दैट इज 4। अब सिंस स्लोप ऑफ AB इज इक्वल स्लोप ऑफ BC, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट बनकर आया वो क्या बनकर आया, A, B एंड C आर कोलिनियर। ये बेटे हमारे इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। डन। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे आप इसका। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन if the tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of line। ये बेटे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें क्या गिवन है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन। ये हमें बेटे फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने मान लिया लेट स्लोप ऑफ वन लाइन इज m। अब वो कहता है कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, तो अनदर लाइन का स्लोप क्या हो गया हमारे पास 2m। तो हमारे पास फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये फॉर्मूला बेटे अप्लाई करेंगे। अब tan थीटा देखो आपको दिया हुआ है, द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, इट मींस tan थीटा इज 1/3 is equal m2 minus m1 यानी 2m minus m 1 plus 2m into m। तो आपके पास क्या आ गया बेटे, की वैल्यू क्या बनकर आई आपके पास m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल 1/3। अब जब बेटे हम मोड यहां से हम हटाएंगे तो इस मॉड के प्लेस पर जब हम रिजल्ट को लिखेंगे तो क्या आएगा, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज 1/3, और दूसरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज -1/3। अब इन दोनों रिजल्ट से हम m की वैल्यू निकालेंगे बेटा। चलिए निकालनी शुरू करते हैं वैल्यू। यहां से क्या बनकर आया मेरे पास इक्वेशन, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल 0, और यहां से क्या बनकर आया 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल 0। फैक्टर करेंगे आप तो आएगा 2m स्क्वायर के फैक्टर करेंगे बेटे तो आपका क्या रहेगा 2m माइनस 1 m माइनस 1 इज इक्वल 0, यानी m की वैल्यू क्या आ गई हाफ और 1, और यहां से 2m स्क्वायर प्लस 2m सॉरी यहां से क्या बनेगा, फैक्टर करोगे आप 2m प्लस 1 m प्लस 1 इज इक्वल 0, तो यहां से m की वैल्यू आ गई बेटा -1 एंड -1/2। देखिए बेटे आपके दोनों केसेस में m आ गया
then m2 is 1. If m1 is 1, then m2 is 2. देखिए इन दोनों के लिए आपके पास रिजल्ट आ गए। अब इनके लिए if m1 is -1, then m2 is -2, or if m1 is -half, then m2 is -1. तो ये बेटा आपकी जो एनसीईआरटी की फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हैं उन पर बेस्ड मैंने आज कुछ क्वेश्चन आपको करवाए, उनकी कुछ बेसिक आपको बताए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड टाइप ऑफ लाइंस। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ लाइंस व्हिच वी कंसीडर इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।